بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم معاشرتی علوم جماعت چہارم کے باب 1 کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ شہریت یعنی سٹیزن شپ جسے انگلش میں کہتے ہیں، اس کے متعلق ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیپٹر میں، اس باب میں ہم کیا کچھ پڑھیں گے۔ اس کو حاصلات تعلم کے عنوان سے اس کے پورے پیج کے اوپر دیا گیا ہے کہ اس چیپٹر میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، جس میں سب سے پہلا جو حاصلات تعلم ہے وہ ہے شہری، عالمی شہری، ڈیجیٹل سائبر شہریت کے تصورات، ان کی جو اصطلاحیں ہیں ان کی تعریف اور ان کے فرق کے بارے میں ہے۔ تو اسی طرح جو دوسرے ایس ایل او ہیں وہ بھی سارے اس پیج کے اوپر دیے گئے ہیں، لیکن آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ صرف اور صرف پہلے ایس ایل او کے متعلق ہوگا، جس کو ہم اگلے صفحے پر ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے شہری کی، کہ شہری کیا ہوتا ہے، جسے انگلش میں سٹیزن کہتے ہیں، کہ یہ جو ٹرم ہے، یہ جو اصطلاح ہے، اس کے میننگ کیا ہیں، اس کی تعریف کیا ہے۔ تو شہری کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی ایک ریاست، قوم یا معاشرے کا کیا ہوتا ہے؟ ایک رکن ہوتا ہے۔ یعنی کسی بھی معاشرے کا جو فرد ہے، کسی بھی ملک کا جو ایک رکن ہے، ایک فرد ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے شہری۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو شہری ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ وہ بیسیکلی رکن ہے۔ کس کا رکن ہے؟ ایک ریاست کا، ایک قوم کا اور ایک معاشرے کا۔ اسی طرح سے مثال کے طور پر اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم دیکھیں کہ ہم پاکستان کے شہری ہیں، یعنی ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہمارے پاس پاکستان کی شہریت ہے، یعنی ہم پاکستان کے شہری ہیں، یہاں پہ رہتے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، تو ہمارے پاس جو شہریت ہے وہ کون سی ہے؟ وہ پاکستان کی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے اگلے فقرے میں یہاں پہ دیا گیا ہے کہ جو اچھا شہری ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اچھا شہری کیا کرتا ہے کہ جو اپنے ملک کے قوانین ہیں ان کا احترام کرتا ہے۔ اب احترام سے کیا مطلب ہے؟ احترام کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اس ملک کے قوانین ہوں گے ان کو وہ فالو کرے گا۔ مثال کے طور پر ہم سڑک کے اوپر جا رہے ہیں اور آگے سگنل آ گیا ہے اور ریڈ سگنل آن ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اگر تو ہم وہاں پہ رک جائیں گے تو ہم نے کیا کیا کہ اس کا قانون کا احترام کیا، اور اگر ہم وہاں پہ نہیں رکیں گے تو اٹ مین ہم نے وہاں پر جو قانون ہے اس کو توڑا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ ہم ایک اچھے شہری کی جو لسٹ ہے اس میں نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے کسی ملک میں رہنے والے جو شہری ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ جو معاشرہ ہے یا وہاں پر جو سیاسی یا مذہبی یا جو معاشی حقوق ہیں، وہ اس ملک کے اندر، اس ریاست کے اندر، اس قوم کے اندر رہنے والے جو شہری ہے اس کو کیا ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی اس ملک کے اندر جتنے بھی جو فوائد، چاہے وہ سیاسی بنا پر دیے گئے ہوں، مذہب کی بنا پر دیے گئے ہوں، یا معاشی جو حصول ہے، مختلف جو سہولتیں ہیں ان کا وہ دیا گیا ہو، وہ اس شہری کو حاصل ہوتا ہے جس ملک کے اندر اس انسان کی شہریت ہوگی۔ اسی طرح شہریت کے بدلے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے تمام جو فرائض ہوں گے اس کو بھی سر انجام دے گا۔ یعنی جو ڈیوٹیاں اس کے دی گئی ہوں گی، وہ گورنمنٹ لیول پہ ہوں، وہ معاشرتی لیول پہ ہوں، اسی طرح سے وہ سیاسی لیول پہ ہوں، اس کو بھی وہ پورا کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ تو یہ سب کیا تھا؟ یہ تھا شہری۔ ایک جو شہری ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داریاں وغیرہ کیا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے شہریت کی، سٹیزن شپ۔ اب یہ دونوں مختلف اصطلاحات ہیں۔ سب سے پہلے ہم شہریت کو جان لیتے ہیں کہ شہریت کیا ہوتی ہے۔ کہ شہریت بنیادی طور پر جو ایک فرد ہے، جو رکن ہے، جس کی بات ہم نے اوپر کی تھی کہ وہ ایک معاشرے یا قوم کا رکن ہوتا ہے، اس کے درمیان اور جس ملک کا وہ شہری ہے ان کے درمیان ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے، بیسیکلی اس تعلق کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ہم کیا ہیں؟ شہری ہیں۔ اسی طرح سے ہماری جو شہریت ہے وہ کیا ہے؟ وہ پاکستانی ہے۔ اب پاکستان کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، جو ہمارا واسطہ ہے، وہ قانونی ہے اور
उस कानूनी वास्ते को, उस ताल्लुक को, उस रिश्ते को शहरियत का नाम दिया जाता है। यानी शहरियत क्या है कि वो बुनियादी तौर पर फ़र्द या रियासत के दरमियान एक ताल्लुक का नाम है। इसी तरह से जो शहरियत है वो क्या करती है, उसके फ़वाइद क्या हैं या उसका मकसद क्या होता है कि किसी फ़र्द की जो कानूनी हैसियत है जिसकी बिना पर वो किसी मुल्क या रियासत का बाशिंदा तस्वुर किया जाता है। यानी जो शहरी है उसकी जो पहचान है वो शहरियत से होती है। अब जो शहरियत है वो क्या होती है कि एक कानूनी हैसियत होती है हर उस फ़र्द की जो किसी भी मुल्क का या रियासत का बाशिंदा होता है। इसी तरह से शहरियत रियासत के कानूनी तकाज़ों को पूरा करके ही हासिल की जा सकती है। अब शहरियत जो है, इसमें इस फ़िक्रे को समझने के लिए हम यूँ थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि एक इंसान जिस मुल्क में पैदा होता है वहाँ पर उसको उस मुल्क की शहरियत मिल जाती है। जैसे हम पाकिस्तान में पैदा हुए, हमें पाकिस्तान की शहरियत मिल गई है। लेकिन अगर हम किसी दूसरे मुल्क की शहरियत लेना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उस मुल्क के जितने भी तकाज़े होंगे, जो कवानीन होंगे, उनको पूरा करना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि हम कनाडा की, यूएसए की, जर्मनी की या यूके की शहरियत हासिल करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस मुल्क के जितने भी तकाज़े होंगे शहरियत हासिल करने के लिए उनको पूरा करना पड़ेगा, फिर ही हम किसी और मुल्क की शहरियत हासिल कर सकते हैं। तो इस फ़िक्रे का मतलब फिर क्या हुआ कि शहरियत को हासिल करने के लिए जो तकाज़े होते हैं शहरियत के, जो कवानीन हैं, जो ज़वाबित हैं, उनको पूरा करना पड़ता है, फिर शहरियत हासिल होती है। इसी तरह से एक शख्स की एक से ज़ायद जो शहरियतें हैं वो भी हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन जिस शख्स की कोई कानूनी हैसियत ना हो, यानी जिस शख्स के पास किसी भी मुल्क की जो शहरियत है वो हासिल नहीं होगी, तो उसके लिए फिर क्या है कि वो मुल्क का शहरी तस्वर नहीं किया जाता। जैसे हम किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, फॉरेन कंट्री में विज़िट के लिए या वैसे किसी और काम से, तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें वीज़ा लगवाना पड़ता है, लेकिन हमारे पास उस मुल्क की शहरियत नहीं होती। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें वीज़े की ज़रूरत पड़ती है। जबकि अगर हम पाकिस्तान वापस आएंगे तो पाकिस्तान वापस आने के लिए हमें वीज़े की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान की शहरियत है। इसी तरह से वो लोग, वो शख्स, वो अफराद जिनके पास कोई भी शहरियत हासिल नहीं होती, वो किसी भी मुल्क का फिर बाशिंदा तस्वर या शहरी तस्वर नहीं किया जाता। रियासत के जो कवानीन हैं उनको, उनके तकाज़ों को पूरा करना ही किसी भी शहरी के लिए ज़रूरी होता है, फिर ही वो उस मुल्क का अच्छा शहरी या शहरी तस्वर किया जाता है। इसके बाद ये भी आप जानिए कि जो एक शहरी होता है उसको शहरी होने के क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। तो किसी भी मुल्क के तस्लीम शुदा जो शहरी हैं, यानी अगर वो मुल्क तस्लीम करता है कि ये जो फ़र्द है ये मेरा शहरी है, तो उसको ये जो ज़ैल में दिए गए फ़वाइद हैं वो हासिल होते हैं। जिसमें सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि उस बंदे को, उस फ़र्द को वोट का हक़ दिया जाता है। यानी इलेक्शन होते हैं, वो किसी भी लेवल पे हों, वो मुल्की लेवल पे हों, वो सूबाई लेवल पे हों, वो इवन के आपके ज़िले में, यानी किसी भी लेवल पे कोई इलेक्शन होता है तो उसको वोट का हक़ दिया जाता है कि वो अपनी राय का कानूनी इजहार कर सकता है और अपनी पसंद के नुमाइंदे को वो चुन सकता है। ये हक़ उसे दिया जाता है। इसी तरह से जो शहरी होगा जिस मुल्क का, उसके लिए ये इजाज़त होती है कि वो उस मुल्क के अंदर जो अवामी ओहदा है, जैसे हम कह सकते हैं कि सरकारी ओहदा है, वो रख सकता है। ठीक है, जिस तरह वज़ीर आज़म, वज़ीर आला या जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेसी जो है, जो ऑफिसर्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, अवामी ओहदे के मालिक हैं। तो उनके पास पाकिस्तान की शहरियत है, इसीलिए उनको ये अवामी ओहदे दिए गए हैं। इसी तरह से जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ है ये भी हासिल होता है किस बंदे को, जिसके पास किसी भी मुल्क की जो शहरियत है वो होगी, उसको समाजी तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाएगा। यानी मुआशरे में वो आज़ादी के साथ अपने मज़हब, अपने रस्म व रिवाज को परफॉर्म कर सकता है और उसको कानून के लिहाज से उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। कोई भी उसके अकायद में, उसके रस्म व रिवाज में खलल नहीं डाल सकता। इसी तरह से सेहत का हक़ है, यानी उस मुल्क के अंदर जितने भी सेहत के अदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं,
इसी तरह से डिस्पेंसरीज वगैरह हैं तो वो अपना इलाज, अपनी अद्वियात वगैरह आसानी से वहाँ से ख़रीद सकता है, इलाज करवा सकता है। जो सहूलियात उस मुल्क के अंदर मौजूद हैं उससे वो फ़ायदा हासिल कर सकता है। इसी तरह से उस मुल्क के अंदर जितने भी तालीमी इदारे हैं उनसे वो पढ़ सकता है, उसके बच्चे, उसकी फ़ैमिली वगैरह उनसे फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, वहाँ दाखिला ले सकते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियात हैं उसको वो हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से अगला जो फ़ायदा है वो क्या होता है कि वो वहाँ पर मुस्तकिल रहाइश रख सकता है। यानी मुस्तकिल रहाइश रखने के लिए किसी भी मुल्क के, दुनिया में किसी भी मुल्क में ये ज़रूरी है कि उसके पास उस मुल्क की शहरियत मौजूद हो, अदरवाइज़ मुस्तकिल रहाइश जो है वो हम नहीं हासिल कर सकते। इसी तरह से अगला फ़ायदा क्या है कि वो ज़मीन की मलकियत हासिल कर सकता है घर बनाने के लिए या अपने बिज़नेस के लिए, या इवन के ज़रूरी ज़मीन वगैरह भी ख़रीदने के लिए ये ज़रूरी है कि वो शख्स उस मुल्क का बाशिंदा हो, उस मुल्क की शहरियत उसके पास हो। इसी तरह से मुल्क के अंदर जो मुलाजमत वगैरह है वो हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आपको उस मुल्क की शहरियत हासिल हो, अदरवाइज़ जो उस मुल्क के अंदर मुलाजमत वगैरह है वो भी आपको नहीं मिल सकती। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में।